Now question number 2. Prove the following statement by using principle of mathematical induction. In which question number 2 is there. So you have to prove this statement by using principle of mathematical induction, and we have studied that we have to go through the different 3 steps. So first basic step is there, so in which we are taking or we are verifying this given statement for n equal to 1, whether it is true or false. For this statement, this is left hand side and this is right hand side. So we have to check this statement is true or false for n equal to 1. So this is your basic statement in which we are taking n equal to 1. Done. Here all n belongs to natural number. So here n equal to 1. So for this n equal to 1, our statement will be p of 1. So what is p of 1? 1 means we have to consider 1 cube step. 2 cube, 3 cube. If n terms are there, then you have to consider n cube. So here only one term is there, so you have to consider 1 cube. Put n equal to 1, so it's a 1 cube. Sum of term from 1 cube to n cube. So n equal to 1, so you have to consider sum of term up to 1 cube. Up to 1 cube means 1 cube only. Equal to, this is our left hand side, and equal to, this is our right hand side. So for right hand side, if you are taking n equal to 1, it's a 1 into 1 plus 1. 1 plus 1 is 2. 2 into 1 divided by 2 square. So this 2 is cut. 1 cube or 1 square, which is 1. So left hand side is 1, right hand side is 1. So left hand side is equal to right hand side. So here our basic step is true, and therefore we can write given statement is true for n equal to 1. So we can write p of 1 is true. P of 1 is true. Done. This is your basic step. Now our assumption, that is inductive hypothesis step. So for that we are assuming, what we are assuming, let p of n is true. Let p of n be true for n equal to k. This we are assuming, let p of n be true for n equal to k. गलत कलर आ गया, देख नहीं रहा है. Let p of n be true for n equal to k. This is our assumption. Let p of n be true for n equal to k. So we are assuming that our given statement p of n is true for n equal to k, and therefore we are writing p of k as n. इसको हमें प्रूव नहीं करना है ना, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड चेक नहीं करना है, इसको डायरेक्ट हमें k के लिए लिख देना है. सो दिस पी ऑफ n. सो व्हाट इज आवर पी ऑफ k? इट विल बी 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू k क्यूब, है ना. k है तो k क्यूब तक एडिशन करना है, दैट इज इक्वल टू k इंटू k प्लस 1/2 होल स्क्वेयर. k इंटू k प्लस 1/2 whole square. Say this one as a result number 1. ये हमारा result 1 हो गया. So we will use this result to prove our n equal to k plus 1. है ना, p of n ले लिया for n equal to k, n equal to 1 आ गया. Now we are taking let n equal to k plus 1. अभी n इक्वल टू के प्लस 1 के लिए हमें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड चेक करना है. इसके लिए स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा. सो अवर पी ऑफ के प्लस 1 स्टेटमेंट इज, पी ऑफ के प्लस 1 स्टेटमेंट इज देयर. वी आर राइटिंग टोटल 3 स्टेटमेंट. फर्स्ट पी ऑफ 1 स्टेटमेंट, देन अवर पी ऑफ के स्टेटमेंट, एंड देन पी ऑफ के प्लस 1 स्टेटमेंट. सो पी ऑफ के क्या था हमारा? के मतलब
के क्यूब तक आपको एडिशन करना है। सो 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब। सपोज पी ऑफ 3 होता तो क्या होता, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब। सपोज पी ऑफ 4 होता तो क्या होता, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब, है ना। तो पी ऑफ के प्लस 1 है, के प्लस 1 मीन्स ये के तक तो है, उसके आगे वाली एक टर्म आएगी यहाँ पर, तो ये पूरा के तक तो आएगा और उसके आगे एक टर्म आएगी, तो कैसे होगा, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, के प्लस 1 क्यूब तक है। तो के प्लस 1 आगे वाली टर्म क्या होगी, के क्यूब, दैट मीन्स के तक तो होगा और उसके आगे एक टर्म होगी के प्लस 1 क्यूब। ये समझ में आया, है ना। दिस इज पी ऑफ के प्लस 1। सो यू हैव टू कंसीडर सम ऑफ क्यूब ऑफ टर्म अप टू के प्लस 1 क्यूब। तो एक के प्लस 1 क्यूब है तो उसकी एग्जैक्ट आगे वाली टर्म क्या होगी, तो उससे एक कम, तो इट्स के क्यूब। क्लियर। दिस इज अवर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, यहाँ पर, है ना, ये के लिए है, के प्लस 1 होगा तो क्या होगा, वी हैव टू रिप्लेस दिस के विथ के प्लस 1, इसको के प्लस 1 बोलेंगे। सो के प्लस 1 हियर, के को के प्लस 1 से रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा, के प्लस 1, के प्लस 1 प्लस 1, सो इट्स के प्लस 2, के प्लस 2 डिवाइड बाई 2 और उसका पावर 2। डन। तो दिस इज अवर पी ऑफ के प्लस 1 स्टेटमेंट। इसमें किसी को कोई डाउट, है ना। ये पी ऑफ के प्लस 1 स्टेटमेंट को हमें प्रूव करना है। प्रूव करना मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड चेक करना है। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, यू टू स्टार्ट विद दिस लेफ्ट हैंड साइड एंड यू टू डिराइव दिस राइट हैंड साइड, है ना। ये आपको डिराइव करना है और ये लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड जाने के लिए हम यूज किसका करेंगे, हमारे रिजल्ट 1 का। डन। सो यू टू प्रूव अवर पी ऑफ के प्लस 1। देखो बेसिक स्टेप एन इक्वल टू 1, वो आपको एन इक्वल टू 1 लेके राइट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड चेक कर लेना है। देन इंडक्टिव हाइपोथेसिस स्टेप, इन उसमें आपको अज्यूम कर लेना है, तो उसको हमने डायरेक्ट लिख दिया। और पी ऑफ के प्लस 1 को आपको प्रूव करना है। प्रूव करना है मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड डिराइव करना है। सो नाउ और लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज अवर लेफ्ट हैंड साइड, है ना। ये पूरा मैं लिख रहा हूँ, देखो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस के क्यूब प्लस के प्लस 1 क्यूब, दिस इज अवर लेफ्ट हैंड साइड। ये समझ में आया, सिर्फ लिखा मैंने। अभी देखो यहाँ पर ये लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, कोई बताएगा मुझे। 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस के क्यूब इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, देखो यहाँ पर दिखेगा आपको, है ना, है ना। हाँ वेरी गुड। बस रिजल्ट 1 देखो, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस के क्यूब एंड दैट इज इक्वल टू क्या है, के इंटू के प्लस 1/2 होल स्क्वायर है। तो यहाँ पर रिजल्ट 1 का यूज करके इतने पार्ट को रिप्लेस करेंगे ये वाले पार्ट से। सो दिस वन के इंटू के प्लस 1/2 होल स्क्वायर प्लस बाकी क्या बचा है ना, रिजल्ट 1 तो यहाँ तक था, ये वाली टर्म बाकी बची के प्लस 1 वाली, है ना। तो दिस इज अवर के प्लस 1 क्यूब। बस इसको सिंप्लीफाई करके हमें ये वाली टर्म लानी है, तो हमारा राइट हैंड साइड हो जाएगा। ठीक है, तो देखो सिंप्लीफिकेशन, ये 2 पावर है तो इसको के स्क्वेयर के प्लस 1 हर एक को अलग अलग पावर सेपरेट कर दे। सो इट विल बी के स्क्वेयर के प्लस 1 स्क्वेयर और ये 2 स्क्वेयर होगा 4 प्लस के प्लस 1 क्यूब, है ना। दिस आर दी टू टर्म्स, इन दिस टू टर्म के प्लस 1 स्क्वेयर इज कॉमन, है ना। देखो मैं के प्लस 1 स्क्वेयर को यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ, तो इट्स अ के प्लस 1 स्क्वेयर इज कॉमन टर्म। बाकी क्या बचेगा, के प्लस 1 स्क्वेयर को कॉमन ले लिया तो बाकी बचेगा के स्क्वेयर बाई 4 प्लस यहाँ पर के प्लस 1 क्यूब, उसमें से के प्लस 1 स्क्वेयर कॉमन लिया तो यहाँ पर एक पावर बचेगा, एक पावर मीन्स के प्लस 1 डन। अभी इसका सिंप्लीफिकेशन करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो दिस इज इक्वल टू के प्लस 1 स्क्वेयर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इट्स के स्क्वेयर प्लस ये मल्टीप्लाई होगा तो 4k प्लस 4
divided by 4. Done. So this is equal to k plus 1 square. Now here it's a k square plus 4k plus 4 है ना, परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल, तो इसका फैक्टराइजेशन होगा k प्लस 2 होल स्क्वायर, k प्लस 2 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4। तो ये हमारा देखो राइट हैंड साइड आ गया, ये सब स्क्वायर स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट ले ले और पूरा पावर स्क्वायर लिखे तो क्या होगा, इट्स अ k प्लस 1 k प्लस 2 बाई 2 होल स्क्वायर। तो देखो ये हमारा ये राइट हैंड साइड आ गया। That means our p of k plus 1 statement is true, है ना, because left hand side is equal to right hand side. So we can say that our p of k plus 1 is true. लेकिन ये p of k plus 1 true कब हुआ, क्योंकि यहाँ पर हमने रिजल्ट यूज किया था 1, और रिजल्ट 1 क्या था, वो तो हमारा अजम्पशन था, जो तो हमने एज्यूम किया था, है ना। तो यहाँ पर हम लिख सकेंगे if p of k plus 1 is true implies p of k plus 1 is true। अगर P of K स्टेटमेंट हमारा ट्रू है ना, देन एंड देन P of K plus 1 स्टेटमेंट इज ट्रू, दोनों ट्रू है। तो देयरफॉर वी कैन से दैट आवर गिवन स्टेटमेंट P of n is true for all n belongs to natural numbers। व्हाट इज आवर P of n, और प्रिंसिपल स्टेटमेंट जो हमने यहाँ पर अज्यूम किया था लेट P of n करके। So this statement is true for all n belongs to n। So this is how you can solve your questions, and this is simplest sum of your exercise। इसमें किसी को कोई डाउट, मेथड एक बार समझ में आ जाए ना तो उसके बाद हमारी जो गाड़ी है ना वो एक्सप्रेस मोड में जाएगी। लेकिन अभी मुझे एक दो सम ऐसे ही करवाना है। आप क्या मैं कर रहा हूँ ना वो समझो, वो सब समझ में आ गया, क्या कर रहा हूँ, कहाँ से कहाँ मैं रिजल्ट ले रहा हूँ। हाँ, आपको 3 स्टेप याद रखना है, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू k और n इक्वल टू k प्लस 1। n इक्वल टू 1 सबको आएगा, एग्जाम में इसका 1 मार्क सबको मिलता है। n इक्वल टू k थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो n को रिप्लेस करके k रखना है, लिख देना है, तो उसका 1 मार्क मिल जाएगा। जो भी दिमाग चलाना है वो यहाँ पर चलाना है ना, ये प्रूव करने में। तो ये प्रूव करने में भी कुछ नहीं है ना, जो k है k वाला पार्ट, उसमें k प्लस 1 एक टर्म आपको आगे लिखना है, और उसी हिसाब से ये जो राइट हैंड साइड है उसमें k प्लस 1 करके आपको राइट हैंड साइड लिखना है। लिख तो देते, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको प्रूव करना। ये अगर आपका बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर है ना तो होगा। बेसिक में ये सब नहीं आता है, एलसीएम लेना, फैक्टराइजेशन करना, तो गए काम से, है ना। तो इसमें कुछ नहीं हो सकता। तो चलो एक और सम करते हैं, क्वेश्चन नंबर, हाँ बोलो बोलो बोलो। ये देखो यहाँ पर क्यूब है ना, पी ऑफ के के लिए के क्यूब है, तो पी ऑफ के प्लस 1 के लिए क्या होगा, के प्लस 1 क्यूब तक आएगा। आया समझ में, ये स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट डन। ये ऐसे ही नहीं होगा, आपको है ना एक दो बार देखना पड़ेगा इसको, और 4-5 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। सो वी आर टेकिंग गिवन स्टेटमेंट एज ए प्रिंसिपल स्टेटमेंट पी ऑफ एन। तो आपको लिखना है जो भी स्टेटमेंट दिया ना उसको हम लेंगे पी ऑफ एन। सो लेट पी ऑफ एन, दैट इज आवर प्रिंसिपल स्टेटमेंट जो हमें प्रूव करना है। सो लेट पी ऑफ एन इज, जो भी क्वेश्चन में दिया है वो, है ना, क्वेश्चन देख के बिल्कुल डरना नहीं है ना, बिल्कुल घबराना नहीं है, क्योंकि ये तो सब लिखेंगे बड़े बड़े स्टेटमेंट, लेकिन होता कुछ नहीं है। इट्स अ 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम सिर्फ एक टर्म कंसिडर कर रहे हैं ना तो आपको करना है 1/1+1, फर्स्ट टर्म के लिए 1। सेकंड टर्म कंसिडर कर रहे हो तो 1/1+2। थर्ड टर्म ले रहे हो, अब टेकिंग सम अप टू थर्ड टर्म, इट्स अ 1+2+3, है ना, 1+2+3। अगर आप एन टर्म तक कर रहे हो तो होगा 1/1+2+3 अप टू एन टर्म, एन टर्म का सम करना है। डन। तो ये क्या होगा, सो सम ऑफ दैट एन टर्म इज इक्वल टू 2n अपॉन n+1।
डन, वेयर ऑल n बिलोंग्स टू n, सबके लिए ये तो दिया ही है कि जो n है ना वो हमारा नेचुरल नंबर है। तो दिस इज आवर प्रिंसिपल स्टेटमेंट p ऑफ n। अभी इसको चेक करना है n इक्वल टू 1 के लिए, है ना, बेसिक स्टेटमेंट। सो लेट n इक्वल टू 1। तो n इक्वल टू 1 तो बिल्कुल इजी, p ऑफ 1 मिलेगा। p ऑफ 1 मतलब 1 तक ही जाना है, 1। सो 1 इक्वल टू, यहाँ पर राइट हैंड साइड में 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 1। 1 प्लस 1 मतलब 2, 2 2 कट, so which implies 1 equal to 1, 1 equal to 1, that is our left hand side is equal to right hand side, left hand side is equal to right hand side, so we can say that our p of 1 is true, p of 1 is true, है ना। ये तो सिर्फ टाइम पास हो गया। उसके बाद और इंडक्टिव स्टेप अज्यूम करना पड़ेगा। सो लेट p of n be true for n equal to k। ये इंपॉर्टेंट है, ये हमने अज्यूम कर लिया कि लेट गिवन स्टेटमेंट p ऑफ n इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। सो और p ऑफ k इज इंडक्टिव हाइपोथेसिस स्टेप p ऑफ k रिप्लेस n विथ k। इसमें भी हम कुछ बड़ा काम नहीं कर रहे हैं ना, सिर्फ जो n है उसको k से रिप्लेस करें गिवन स्टेटमेंट। ये तो आपको क्वेश्चन में दिया है, अभी तक हमने हमारा कुछ दिमाग नहीं चलाया है, ठीक है। इट्स 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू n टर्म है, तो इट्स 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n टर्म का सम। n नहीं, k है ना, k लिख रहे हैं, तो k इक्वल टू ये हमारा इंपॉर्टेंट है 2k अपॉन k प्लस 1। इसको हम बोलेंगे हमारा रिजल्ट नंबर 1। क्लियर, क्योंकि ये रिजल्ट हम यूज करने वाले हैं। अभी हमें देखना है हमारा थर्ड स्टेटमेंट, है ना। दो हो गए, n इक्वल टू k हो गया, n इक्वल टू 1 हो गया। सो नाउ n इक्वल टू k प्लस 1। k प्लस 1 भी एकदम इजी, इसमें भी दिमाग तो बिल्कुल नहीं चलाना है। क्या करना है, जो k है उसकी जगह पर हमें क्या करना है, k प्लस 1 करना है। देखो n तो था ही हमारे पास, n को रिप्लेस करके हम k ले आए। अभी k को रिप्लेस करना है हमें k प्लस 1 से, तो बस यहीं पर ही रिप्लेस करना है। लेकिन रिप्लेसमेंट में कुछ देखना है आपको, कैसे होगा। k प्लस 1 दैट मीन्स k तक तो हो गई, ये टर्म तो होगी, उसके आगे एक और टर्म होगी, है ना, ये सब टर्म तो होगी, और इसके आगे कुछ होगा यहाँ पर k प्लस 1 के लिए, बस वही लिखना है। तो क्या होगा वो 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ये टर्म तो आएगी, है ना, k तक तो आएगी, और उसके आगे एक टर्म आएगी 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू k, और उसके आगे एक टर्म आएगी ना, वो क्या आएगी 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू k प्लस 1। क्लियर, k प्लस 1 एंड दैट इज इक्वल टू, ये हमारा राइट हैंड साइड होगा। कहाँ लिखे, यहाँ पर लिखे, दैट इज इक्वल टू, है ना, राइट हैंड साइड पर क्या होगा, k की जगह पर k प्लस 1, तो इट्स 2 इंटू k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 मीन्स k प्लस 1 प्लस 1, तो होगा k प्लस 2। ये हमारा राइट हैंड साइड हो गया p ऑफ k प्लस 1 का। ये हमें डिराइव करके लाना है ना, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करना है, राइट हैंड साइड ये हमें लाना है। यहाँ तक क्लियर सबको। चलो अभी लेफ्ट हैंड साइड ये लिखते हैं ना। सो गिवन लेफ्ट हैंड साइड, बोलो बोलो, नहीं। सो नाउ लेफ्ट हैंड साइड किसका लिख रहे हैं हम, p ऑफ k प्लस 1 का, है ना। तो ये लिख रहे हैं पूरी टर्म, ये तो दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू k प्लस 1 तक जाना है, तो k तो बीच में आएगा, तो उसको बीच में हम, है ना, मिल के जाते हैं मतलब उसको लिख देते हैं यहाँ पर
1+2+3 अप टू के, है ना। हैंड राइटिंग मेरी बहुत अच्छी है। 1/1+2+3 और ये आएगा k+1, है ना। ये पूरी लेफ्ट हैंड साइड लिखी मैंने। दिस इज इक्वल टू, अभी यहाँ पर रिप्लेस करना है, बोलो कौन करेगा रिप्लेस। यहाँ से लेके यहाँ तक, हाँ रिजल्ट 1 से यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम बात करें तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये सेम टर्म है ना। और इसका मतलब क्या है, दैट इज इक्वल टू 2k/k+1, रिजल्ट 1 का यूज करेंगे। सो रिजल्ट 1 इज 2k/k+1 प्लस, है ना। और ये लिखना है सम ऑफ एन टर्म। तो इसको कैसे लिखेंगे, ये टर्म को लिखना है, लेकिन ये टर्म के लिए हमारे पास फॉर्मूला था ना, सम ऑफ एन टर्म। सम ऑफ एन टर्म के लिए फॉर्मूला था। सो दैट फॉर्मूला इज, कहाँ लिखूँ, लास्ट में लिखता हूँ। सम ऑफ एन टर्म इक्वल टू n+1/2, लेकिन हमारे पास n टर्म नहीं है, हमारे पास कितनी टर्म है, k+1 टर्म है। तो क्या होगा, सम ऑफ k+1 टर्म, है ना। देखो ये सम है 1+2+3, सम ऑफ n नेचुरल नंबर था ना, 1+2+3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। सम ऑफ n टर्म्स, याद करो फॉर्मूला 10th स्टैंडर्ड, और स्टार्टिंग में भी मैंने लिखवाया था। इट्स 1+2+3+n। देखो यहाँ पर पूरा लिखता हूँ, 1+2+3 up to n. So sum of n term was Sn, and that is equal to n+1/2. Now instead of n, what we are having, 1+2+3, है ना। इसके जगह पर हमारे पास है 1+2+3 अप टू सम ऑफ कितनी टर्म, k+1 टर्म है, k k+1। n को रिप्लेस करना है k+1 से, इट्स अ k+1 इट्स अ k+2/2। तो ये जो टर्म है ना, ये इसका रिप्लेसमेंट होगा k+1 इंटू k+2/2। तो ये तो डिनोमीटर में, तो ये 2 ऊपर जाएगा, तो 2 ऊपर, है ना, 2 ऊपर, और डिनोमीटर में आएगा k+1 k+2। बोलो यहाँ पर किसी को कोई डाउट। 2-3 बोल रहे नो सर, नो सर, क्या करे। चलो 2 and k+1 कॉमन टर्म, so 2/k+1 कॉमन टर्म, रिमेनिंग टर्म्स आर 2 और k+1 निकाल दिया तो k बचेगा, प्लस 1, यहाँ पर 2 गया, k+1 गया, और k+2 यहाँ पर बचेगा। डन। इसका सिंप्लीफाई करो, डायरेक्ट आंसर आएगा। सो दिस इज 2/k+1 हियर, k+1 इंटू k, इट्स अ k² + 2k+1, k² + 2k+1 और एक k² + 2k+1 क्या होगा, 2/k+1, ये होगा k+1 होल स्क्वायर अपॉन k+2, और यहाँ पर k+1 एक टर्म कैंसल। सो आंसर इज 2 इंटू k+1 k+2, और ये तो लाना था मैं, देखो आ गया राइट हैंड साइड। दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्लियर। और उसके बाद जो हम कहानी लिख रहे हैं ना, ये स्टेटमेंट आपको खुद से लिखना है, ये पूरा, है ना, ये आपको याद कर लेना है। देयरफॉर p ऑफ k+1 इज ट्रू, उसके बाद p ऑफ k इज ट्रू implies p of k+1 is 2, and therefore our p of n is 2 for n belongs to n। अगर ये आपके एग्जाम में नहीं लिखा है तो आपका आधा मार्क्स जाएगा। क्लियर। बोलो इसमें किसी को कोई डाउट, छोड़ो। इसमें किसी को समझ में आया, किसको समझ में आया है ना। मुझे पता है इसमें 100% किसी को नहीं समझ में आया है।
हो जाएगा, वेरी गुड। नाम बताओ, कौन बोला? तनिषा, वेरी गुड। और राहुल, और बाकी हमारे धुरंधर। हाँ बोलो। रिजल्ट टू कौन सा? हमारे पास रिजल्ट टू है ही नहीं। देखो, ये अलग से था। ये नीचे है ना, हमें ये टर्म सम के फॉर्म में थी, उसका हमें सिंप्लीफाई करके लिखना था यहाँ पर, है ना। ये टर्म तो हमारे पास थी, लेकिन ये टर्म को हमें रिप्लेस करना था। ये टर्म को कैसे रिप्लेस करेंगे? ये फॉर्मूले से ये रिप्लेस किया हमने। बाकी तो हम रिजल्ट वन तो यहाँ पर यूज कर दिया हमने। देखो, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड था, तो यहाँ तक, यहाँ से लेके प्लस ये भी था ना, ये भी था प्लस। तो यहाँ से लेके ये जो टर्म थी, उसका रिप्लेसमेंट हमने रिजल्ट वन से किया, 2k/k+1। देखो, ये किया हमने, अपॉन प्लस ये टर्म थी ना 1+, इसका रिप्लेसमेंट अगेन हमने फॉर्मूला का यूज करके किया। इसके आगे वाले सम में ये टर्म आपको डायरेक्ट दी थी, लेकिन ये वाले सम में ये जो टर्म है उसका आपको सिंप्लीफाई करके रखना पड़ेगा। आया समझ में? ये जो सम के फॉर्म में है, टर्म नहीं है, ये पूरा एक सीक्वेंस है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ना। इसको रिप्लेस किया फॉर्मूला का यूज करके, ये फॉर्मूला, और ये टर्म आई, और इसके बाद इसको सिंप्लीफाई किया, तो हमारा राइट हैंड साइड है ना। एक बार और आपको इसको ना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना, इसमें ज्यादा प्रैक्टिस है। अब देख रहे हो ना, मैं देखो एक सम हमारा एक लेक्चर गया। एक बार आपको इसकी जो जो फॉर्मेट है ना क्वेश्चन की, वो एक बार अच्छी तरह से समझना है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन अगर ये क्वेश्चन नंबर 4 आप समझ गए ना, तो कल से हम हमारी स्पीड बढ़ाएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 4, है ना, ये थोड़ा इजी है, सिंपल है, और पूरे चैप्टर को समझने के लिए ये सबसे इजीएस्ट फॉर्म है। देखो क्वेश्चन नंबर 4। सो हियर और पी ऑफ एन, लेट प्रिंसिपल स्टेटमेंट पी ऑफ एन इज वन, डॉट नहीं है, 1 × 2 × 3 है, प्लस 2 × 3 × 4। सेकंड टर्म है ना, फर्स्ट टर्म है तो फर्स्ट, उसके आगे दो टर्म मल्टीप्लाई करना है। सेकंड टर्म है तो सेकंड टू, और उसके आगे के दो जो नंबर है उसको मल्टीप्लाई करना है। सिमिलरली थर्ड टर्म है तो थर्ड के आगे दो नंबर कौन से आएंगे, 4 और 5, तो उसको मल्टीप्लाई करना है। ये हमारी थर्ड टर्म होगी, है ना। तो ऐसे टोटल एन नंबर ऑफ टर्म है, तो एन टर्म क्या होगी, तो कि एन, एन को आगे वाली दो टर्म्स, कौन सी दो टर्म, n+1 और n+2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। आ गया समझ में? तो ये जो मल्टीप्लीकेशन हमें मिलेगा, है ना, ये सब का तो सम है ना, सम ऑफ ऑल दिस टर्म। तो वो जो एस एन मिलेगा, वो एस एन क्या मिलेगा, तो दैट इज अवर राइट हैंड साइड, दैट इज n+2, n+3/4। दिस इज अवर स्टेटमेंट फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। डन। नाउ बेसिक स्टेटमेंट, लेट n = 1। n = 1 के लिए चेक करना है, तो होगा p ऑफ 1। फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म के लिए लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी, 1 × 2 × 3, और राइट हैंड साइड पर क्या होगा, ये पूरा 1 × 1 + 1 2, 1 + 2 3, 1 + 3 4 /4। तो ये होगा 3 × 2 = 6, और ये होगा 4 4 कट, 3 × 2 = 6, 6 = 6। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो p ऑफ 1 इज ट्रू। डन। कर लिया टाइम पास। आगे इंडक्टिव हाइपोथेसिस, ये पी ऑफ एन हम बाद में लिखना बंद ही कर देंगे ना, वो आपको एग्जाम में लिखना है। सो नाउ इंडक्टिव हाइपोथेसिस स्टेप क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे लेट पी ऑफ एन इज ट्रू फॉर एन। वेरी गुड। उसके बाद हम स्टेटमेंट लिखेंगे, और पी ऑफ के, पी ऑफ के सिंपल, पी ऑफ के क्या है, एन है, उसकी जगह पर के, ये जो एन एन सब दिख रहा है उसकी जगह पर अभी आपको दिखेगा सब के। सो 1 × है ना, मल्टीप्लीकेशन है, पॉइंट कोई नहीं बोलेगा इसको, 2 × 3 × 4, कहाँ तक, के, k+1, k+2,
और इसका रिप्लेसमेंट हम करेंगे, कैसे करेंगे, के प्लस वन अपॉन 4, इसको हम बोलेंगे रिजल्ट नंबर 1। डन। नाउ प्रूव करना है हमें, so for proof we are taking n equal to k plus 1. So let n equal to k plus 1. So k plus 1, so statement is p of k plus 1, p of k plus 1, k plus 1 क्या होगा, ये तो सिर्फ k के लिए आ रहा है ना। देखो मैंने बोला कि फर्स्ट टर्म लिखनी है आपको, तो फर्स्ट टर्म मतलब 1 लेना है, उसके आगे वाली दो टर्म, सो 1 प्लस 1 और उससे आगे 2 आएगी, तो 1 प्लस 1। सेकंड टर्म के लिए 2 प्लस 1 और उसमें एक 1 ऐड करना है ना। सिमिलरली थर्ड टर्म के लिए यहाँ पर लिखा था थर्ड टर्म, तो उसके आगे एक टर्म और टर्म, के टर्म लिखना है तो के और उसके आगे दो टर्म के प्लस 1 और के प्लस 2। सो के प्लस 1 लिखना है तो क्या आएगा, के प्लस 1, के प्लस 2, के प्लस 3 आएगा। यस, इट्स 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस के प्लस 1 जाना है तो बीच में हमें के तो मिलेगा ही, तो के को लिखते हैं क्योंकि इससे हमें आसानी होती है। तो एक के टर्म हो गई और उसके आगे आएगी के प्लस 1 टर्म, सो प्लस के प्लस 1 और उसके आगे दो मल्टीप्लाई करना है, सो के प्लस 2, के प्लस 3। दिस इज अवर लेफ्ट हैंड साइड, और उसके इक्वल टू राइट हैंड साइड लिखना है, जगह कम पड़ गई। उसके आगे क्या होगा, यहाँ पर ही लिखते हैं इक्वल टू, तो यहाँ पर के टर्म के लिए है तो के है, तो के प्लस 1 है ना, देखो के टर्म के लिए, तो ये के प्लस 1 होगा, के प्लस 1, के प्लस 2, के प्लस 3, के प्लस 4, थ्री है ना, तो के प्लस 4 तक आएगा डिवाइड बाय 4। ये हमारा राइट हैंड साइड, इसको प्रूव करना है। ठीक है, पी ऑफ के प्लस 1 स्टेटमेंट है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड, इसको इक्वल टू इससे जो राइट हैंड साइड वो प्रूव करना है, और इसके लिए यूज करेंगे हम रिजल्ट नंबर 1 का। स्टार्ट करें लेफ्ट हैंड साइड से, चलो लेफ्ट हैंड साइड पूरा लिखते हैं ना, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू है ना, ये पूरा मैं लिख रहा हूँ, तो इट्स 1 मल्टीप्लाई 3 1 2 3 2 3 एंड 4 प्लस के टर्म के लिए के प्लस 1, के प्लस 2, और उसके आगे वाली टर्म के प्लस 1 के लिए के प्लस 1, के प्लस 2 और के प्लस 3, है ना। दिस इज अवर लेफ्ट हैंड साइड। अगर रिप्लेस करना है कहाँ तक, तो क्या देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक, के तक, है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका रिप्लेसमेंट क्या होगा, ये होगा रिजल्ट 1, ये वाला, ये रिप्लेस करना है, तो दिस इज इक्वल टू के, के प्लस 1, के प्लस 2, के प्लस 3 डिवाइड बाई 4 प्लस, अभी देखो लास्ट वाले सम में ना हमारे पास ये टर्म नहीं थी, यहाँ पर हमें सीक्वेंस थी, तो सीक्वेंस का फॉर्मूला अप्लाई करके हम टर्म लेके आए थे, लेकिन यहाँ पर तो डायरेक्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में ही है, तो अभी ये फॉर्म टर्म डायरेक्ट लिखेंगे, है ना। लास्ट वाले सम में ये नहीं था हमारे पास, इसलिए वो फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ा था। तो ये के प्लस 1, के प्लस 2, के प्लस 3 समझ में आया। लास्ट सम में ये और ये सम में डिफरेंस, है ना। लास्ट सम में ये लाने के लिए हमें फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ा था, वहां पर सीक्वेंस थी 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू के प्लस 1, वो सीक्वेंस थी, इसलिए वो फॉर्मूला अप्लाई किया था। यहाँ पर तो डायरेक्ट दिया है। अभी देखो ये के प्लस 1, के प्लस 2, के प्लस 3 यहाँ पर भी है, कॉमन ले ले, तो के प्लस 1, के प्लस 2, के प्लस 3 कॉमन टर्म, बाकी क्या बचेगा, ये दोनों दो टर्म है ना, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, इसमें से हमने ये के प्लस 1, के प्लस 2, के प्लस 3 कॉमन लिया, तो बाकी बचेगा के बाई 4, के बाई 4, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो जीरो नहीं बचेगा, 1 बचेगा, है ना। बस ये आंसर आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो इट्स के प्लस 1, के प्लस 2, के प्लस 3, के प्लस 4 होल डिवाइड बाई 4, होल डिवाइड बाई 4, तो ये 4, इसको अभी आप कंपेयर करो, यही तो है।
क्लियर। इसके बाद आपको लिखना है कि पी ऑफ के प्लस वन इज ट्रू। ये ट्रू क्यों हुआ? क्योंकि हमारा पी ऑफ के ट्रू हमने एज्यूम किया था। तो अगर ये ट्रू है तो विच इम्प्लाइज पी ऑफ के प्लस वन is true and therefore our given statement p of n is true for all n belongs to n। ऐसे आपका पूरा सम होगा। बोलो, अभी किसी को कोई डाउट?